Hello, ma'am. Okay, good afternoon, everyone. Now we have a good strength. I think it is 63, 62 because one of them is me. Okay. So last class we were talking about the recommendations or the policy initiatives that were given in NP in 1968. Okay, 1968 was just few years after independence. So we had a lot of problems like backlog of untrained teachers. We had people who were not educated, much educated. Okay, so there were many provisions that were suggested or that were there in the policy, like having alternate methods of education, there's adult education and all, people who are not learned.
having teachers training. Sorry, I thought it was some student and he couldn't find. There was no one. Okay. So, and much focus was on having higher education and that too on monitoring of the education, like the initiatives to be taken at NEPA, then having the DCO doing their own monitoring functions, okay, and then also developing the school complexes so that the students Hello. all type of education there itself, whether it is secondary education, primary education, मैम uh, योर वॉइस इज ब्रेकिंग. हाँ मैम, आपका यस वॉइस मैम, ठीक से नहीं आ रहा है. and so ब्रेक that हो रहा है आपका वॉइस. shared, or whether it is the human resources in आई terms of थिंक मैम को teachers, सुन ही नहीं clerks, दे रहा. okay, PUs, etc. मैम हाँ मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है Now बहुत. see, so good, so much good initiatives to improve the education system in India. Still, much of the things were not done. Few things that were not done was starting. Yes, Nikunj, what is it? You are मैम raising आपका your वॉइस hand. नहीं आ रहा है, बीच में ब्रेक हो रहा है मैम. हाँ मैम, आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है. It is showing like that. Is it? You want to say something? मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग. आपकी आवाज यस ब्रेक मैम. हो रही है. अभी आ रही है? हाँ मैम, अभी अभी क्लियर आ रहा है. ओके. निकुंज ने हाथ क्यों उठाया पता नहीं. उसको मैम वही बताने के लिए, वही बताने के मैम लिए यही कि आपकी बताने के आवाज. लिए. हाँ. ओके. मैम वही बोल रहा था मैं. Now, though it was given and if those policy initiatives had been implemented, India's education system would have improved quite a lot. But still, nothing was done. So, after 17 years, in 1986, the then Prime Minister, Mr. Rajiv Gandhi, you might have heard about him, Rahul Gandhi's father, he said that in 1968, one thing that I forgot to tell you is they also had said that every 5 years you should have. मैम आवाज ब्रेक हो रही है. What all things are planned. So yeah, I think I told you, NEPA should do 5 years of planning and should be monitoring the things. Okay. That Nikunj's hand is still raised. You want to say something, Nikunj? मैम वही बोल रहा था, आपकी आवाज बहुत लो आ रही है मैम. Not able to hear you. मैम आपकी वॉइस स्लो आ रही है. दैट इज व्हाट इवन निकुंज इज सेइंग. आपकी वॉइस मैम थोड़ी स्लो आ रही है. आप थोड़ा नजदीक वो लैपटॉप उसको रखिए मैम, सो दैट वॉइस आपकी बहुत लाउड लो आ आए. रही है मैम. अभी हाँ मैम, अभी बराबर है. हाँ मैम. ठीक है. मैंने ईयरफोन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ईयरफोन से फिर कभी कभी वो वाइब्रेट होता है और फिर तुम्हें और नहीं सुनाई देता, इसलिए मैंने बिना उसके रखा है. नाउ इज इट ओके? यस मैम, नाउ इट. यस मैम. ओके 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 ओके. चलो, so फिर we will start. Okay, so the then time prime minister in 86 said that we should have a new education policy for education, and he initiated into it, and there was another education policy. Of course वो जो points थे वो almost 68 जैसे ही थे. Okay, so there was a new education policy or national education policy in 1986, and it had many recommendations. Okay? एजुकेशन के बारे में था, फिर टीचर एजुकेशन यानी कि टीचर ट्रेनिंग के बारे में था, एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में था, सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में था. लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यू ऑल आर गोइंग टू बी वुड बी टीचर्स, तो मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ जो स्कूल टीचिंग रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशंस है उसी को हम फोकस करें. ठीक है, इसीलिए मैंने सिर्फ वही वाले क्या बोलते हैं पॉइंट्स को लिया है हमारे क्लास के लिए. Okay, and you have to study that only.
Other things also, if you are interested, you may read. It is available on web. If you type National Education Policy 1986, तो आपको सारे recommendation मिलेंगे. Okay, so let us start with elementary education. उन्होंने ECCE के बारे में भी बोला था. You know what is ECCE? Ma'am, can you please repeat? ECCE सुना है आपने? No, ma'am. No. Okay. ECCE is about the pre, मतलब हम लोग जो किंडर गार्डन के बच्चे बोलते हैं ना, जूनियर केजी, सीनियर केजी एंड नर्सरी, उनके लिए होता है. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज, आई एम आल्सो फॉरगेटिंग इट्स a full form. It is education for okay, during the class वो मुझे शायद याद आ जाएगा, मैं तुम्हें बताऊंगी. ठीक है. अभी फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है, so I admit that. तो we don't study that also. ठीक है. वो क्योंकि वहाँ पे शायद आप लोग नहीं जाओगे, because you are graduates and post graduates, you'll be going for secondary classes and elementary classes. So let us see what was the policy initiative which was given in 1986. Okay, the first one was about elementary education. तो elementary education के लिए उन्होंने ऐसा बोला था, universal access and enrollment. Okay, what is access? Access मतलब हर student जो 6 to 14 years age में है, उन लोगों को easy access होना चाहिए. ठीक है. Easy access of what? Primary education या फिर elementary education. They should have easy access of elementary education. ठीक है. Elementary word तब आया जब हम लोग ने 8th standard को भी प्राइमरी में कंसिडर कर लिया. पहले हम लोग 1 to 7 को प्राइमरी एजुकेशन बोलते थे, जहां 1 to 4 वाज लोअर प्राइमरी, 5, 6, 7 वाज अपर प्राइमरी. फिर जब 8th स्टैंडर्ड को भी हमने सम्मिलित कर दिया प्राइमरी में, तो हम उसको एलिमेंट्री एजुकेशन बोलने लगे. ठीक है. तो फिर एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए उन्होंने बोला कि यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, यानी हर बच्चे को अवेलेबिलिटी होना चाहिए एलिमेंट्री स्कूल का, उसके नियर बाय प्लेस में, एंड एनरोलमेंट भी होना चाहिए, और हर बच्चे का एनरोलमेंट भी होना चाहिए. ओके. द नेक्स्ट वाज यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चाइल्ड अप टू 14 इयर्स. रिटेंशन मतलब एक बार बच्चे ने एडमिशन ले लिया तो यस निकुंज. हाँ मैम, वो ECCE बोल रहे थे ना आप अभी, यस. उसका फुल फॉर्म इवन आई एम नॉट एबल टू हियर यू ऑल. कृति बोल रही थी, मेरे को बहुत ऐसे झांखा सुनाई दे रहा था, कम सुनाई दे रहा था. अर्ली चाइल्डहुड केयर और ईयरबड्स की वजह से क्या पता नहीं. बोलो, आप बोलो निकुंज. हाँ. ECE पूछ रहे थे ना मैम अभी आप? हाँ, पूछ रही थी. हाँ, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उसका फुल फॉर्म. या गुड गुड गुड. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. ओके. तो अर्ली चाइल्डहुड यानी कि बिफोर द एज ऑफ 6 या बिफोर द चाइल्ड एंटर्स इनटू फर्स्ट स्टैंडर्ड. ओके. तो 3 इयर्स टू 6 इयर्स का जो बच्चा है उसको भी एजुकेशन मिलना चाहिए, ऐसा 1986 बोलता था. और उसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस भी थे, लेकिन वो मैं नहीं ले रही हूँ, बिकॉज इट विल बी टू यू नो बहुत ज्यादा बर्डनसम हो जाएगा तुम लोगों के लिए. ठीक है. तुम यू कैन रीड इट ऑन. यस. I'll have my class. If you want to attend, it's okay. For me, it's okay. Okay. So, universal retention of the children up to 14 years of age. Okay. Then next was substantial improvement in quality of education. If you remember, in the morning also I told you that NPE 68 also said that there should be quality in education. Okay. So here also quality in education was much focused. Okay. The next thing that they proposed was child-centered approach of teaching. Okay. अन्नपूर्णा मैडम, you will just ये दरवाजे थोड़ा ऐसा करके जाओगी, हो जाएगा फिर. या ये. Okay. So the next was using child-centered approach of teaching. You know what is child-centered approach of teaching? अब तक तो आपने बहुत सुन लिया होगा अलग अलग क्लासेस में.
Have you all heard about Yes, it? ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah, what is it? मैम चाइल्ड को सेंटर में रखते हुए उसकी जो नीड है उस हिसाब से हम टीचिंग करेंगे बच्चे को। अच्छा। उनको और? मतलब मेन रखेंगे। पहले टीचर सेंट्रिक था, जो टीचर बोलेगी वही सच है, वही करना है, पर अभी ऐसा नहीं। हाँ, जो मतलब child- टीचर जो बोले वो गीता वाक्य है, और अभी ऐसा नहीं। अभी 86 was about more than 30 years back. तभी उन लोगों ने बोला था we should have child centered approach of teaching. ठीक है, means give more activities to the student. Basically child centered approach का principle एक ही है, involve the children more into learning. Okay, and that can be done if you are using more of activity based learning. Okay, then next is first generation learners should be allowed to set their own pace and give supplementary remedial instruction. Okay, now see 86 और 47 के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। ठीक है, तो क्या है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी फैमिलीज थी जहाँ पे बच्चे और उनके पहले पापा और उनके दादाजी कभी भी स्कूल नहीं गए थे, तो वो लोग पहले थे जो स्कूल में आए। तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आर दो स्टूडेंट्स who come to the school for the first time and no one in their family had come to school. Okay, so what the policy said that such learners who are first generation learners, they should be given their own pace. own pace मतलब उनको अपने own speed पे learn करने की छूट देनी चाहिए। why वो छूट क्यों देनी चाहिए? क्योंकि उनके घर में कोई ऐसा नहीं है जो उनको पढ़ा सके, कोई ऐसा नहीं है जो उनको गाइड कर सके। ठीक है, तो उन लोगों को उनकी अपनी स्पीड में पढ़ने देना चाहिए। ठीक है, और साथ में टीचर्स को नॉर्मल क्लासरूम के साथ साथ उन लोगों को रेमेडियल इंस्ट्रक्शन भी देना चाहिए। ठीक है, रेमेडियल इंस्ट्रक्शन क्या होता है? जो बच्चे वीक होते हैं पढ़ने में या स्लो लर्नर्स होते हैं, ठीक है, स्लो लर्नर्स होते हैं, वो लोग दूसरे बच्चों की स्पीड में नहीं पढ़ सकते, उनको हम स्लो लर्नर्स बोलते हैं। तो वो स्लो लर्नर्स के लिए अलग से क्लास होता है। ठीक है, बिफोर द स्कूल, आफ्टर द स्कूल, इन बिटवीन द स्कूल कोई फ्री टाइम है तभी उन लोग के लिए स्पेशल क्लासेस होते हैं जहाँ पे टीचर उनको अलग से पढ़ाती है। ठीक है, सो रेमेडियल इंस्ट्रक्शन वाज देयर। As the child grows, the component of cognitive learning will be increased and the skills organized should be practiced. Okay, तो वो जो प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मोर स्किल बेस्ड लर्निंग देना चाहिए, और वो आज भी होता है। If you see in the primary classes, you have more of craft based activities, you have more of visits to different places. Okay, so such things are being included. Why? So that their cognitive level यानी उनका जो thinking है वो develop हो। ठीक है, rather than mugging up things, they should learn to think about various aspects or the topics. Okay, that was the aim. Then the policy of non-retention at the primary stage will be retained, making evaluation as a disaggregated as feasible. Okay, now what is non-detention? Non-detention का मतलब ये है कि अगर बच्चे ने कम मार्क्स भी लिया है तो उसको फेल नहीं किया जाएगा। कब तक फेल नहीं किया जाएगा? जब तक वो 8th स्टैंडर्ड में नहीं आ जाता। ठीक है, तो हर क्लास में उनका अगर कम भी है लर्निंग तो उन लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा कुछ ग्रेस मार्क्स वगैरह देके। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नॉन डिटेंशन पॉलिसी प्राइमरी स्टेज में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मेकिंग इवैल्यूएशन एज अ डिसएग्रीगेटेड एज फीजिबल। डिसएग्रीगेटेड मतलब कि उसको इवैल्यूएशन इतना अच्छा बनाओ कि जो नॉर्मल बच्चा भी है, स्लो लर्नर भी है, वो भी पास कर सके उसमें। ठीक है, तो उसको डिसएग्रीगेटेड एज फीजिबल यानी जितना इजी या सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाओ। ठीक है, कॉर्पोरल पनिशमेंट फर्मली नॉट टू बी यूज्ड, ये था। ठीक है, एंड स्कूल टाइमिंग्स एज वेल एज वेकेशंस एडजस्टेड टू द कन्वीनियंस ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों के कन्वीनियंस के हिसाब से एलिमेंट्री स्कूल्स में ये सब कुछ एडजस्ट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट वाज अबाउट स्कूल फैसिलिटीज इन द एलिमेंट्री स्कूल्स। क्या क्या स्कूल फैसिलिटीज होनी चाहिए? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, वो टाइम ऐसा था जहाँ पे कुछ स्कूल्स ऐसे थे जिनके पास ब्लैक बोर्ड भी नहीं था। आज हम लोग स्मार्ट बोर्ड की बात कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड की बात कर रहे हैं, हम लोग स्मार्ट क्लास की बात कर रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। लेकिन तब तो ऐसे क्लासरूम्स भी थे जहाँ पे ब्लैक बोर्ड भी नहीं था। ठीक है, तो
वहां पे ब्लैक बोर्ड देने के लिए और कुछ बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि बैठने के लिए दरी या बैठने के लिए बेंचेस देने के लिए, ठीक है, एक चेयर या एक कबर्ड देने के लिए जहाँ पे बच्चों के जो आंसर बुक्स है उसको रख सके, ऐसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको देने के लिए एक प्रोग्राम रन हुआ था बाय द गवर्नमेंट दैट वाज कॉल्ड एज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ओके, और ये स्पेशली एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए था, ठीक है। एलिमेंट्री स्कूल्स जहाँ पे ब्लैक बोर्ड नहीं है, जहाँ पे कबर्ड नहीं है, वो रखने के लिए चिल्ड्रन के असेसमेंट किए हुए पेपर्स, फिर बैठने के लिए बेंचेस नहीं है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं, टॉयलेट नहीं है, ठीक है, वैसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इन्वेंट हुआ था। इन्वेंट मतलब स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम, और उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत फंड उनको देती थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड करने के लिए, ठीक है। So will be enlarged to provide 3 reasonable large rooms. Okay. Under the Operation Blackboard, they said that not only the basic facilities, but the school should also get 3 large rooms. Okay, that can be used in any season. ठीक है, छत वाला होना चाहिए ताकि कोई भी सीजन में, even in the rainy season, that rooms can be used for classrooms. Okay. And maps, charts, toys and other things should be provided. School library should be provided. ये सब किसको देना है? Elementary schools को. Then at least 3 teachers should work in every school. Okay? अब elementary schools का ऐसा condition था कि कोई भी teacher कोई भी subject पढ़ा देता था, ठीक है? तो उन्होंने ऐसा बोला कि at least 3 teachers को हर elementary school में होना चाहिए. At least 50% of the teachers recruited should be women. Okay? Elementary schools में बच्चे बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और उनको मदरली केयर और कंसर्न ज्यादा चाहिए. सो दे सेड दैट मेल टीचर्स हो सकते हैं लेकिन 50% ऑफ द स्टाफ शुड बी फीमेल टीचर्स. फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स शुड आल्सो बी द प्रायोरिटी. ओके, ये भी करने के लिए बोला. एलिमेंट्री स्कूल के साथ साथ उन्होंने नॉन फॉर्मल एजुकेशन इन द एलिमेंट्री एजुकेशन भी शुरू किया. व्हाट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन? सुना होगा आपने कहीं पे. एक होता है फॉर्मल, एक होता है नॉन फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल. यस मैम. सुना है आपने? यस मैम. यस मैम. लाइक म्यूजियम में ले जाते हैं, गार्डन में ले जाते हैं. शिक्षा केंद्र जहाँ पर गांव में इकट्ठा करके पंचायत भवन में सभी लोगों को पढ़ाया जाता था जो इलिटरेट होते थे. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है. नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है जिसमें कुछ एज की बाधा नहीं होती, ठीक है. जैसे दीपक इज टेलिंग अस दैट अगर किसी ने अपना मतलब एजुकेशन बचपन में नहीं किया और बड़े होने के बाद लगा कि मुझे पढ़ना है, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के तहत वो पढ़ सकते हैं, ठीक है. और अभी भी ऐसे प्रोविजंस हैं अगर किसी को पढ़ना है तो, ठीक है. कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से 10th का एग्जाम नहीं दे सके, कुछ पढ़ नहीं सके आगे, तो वो लोग अभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है. ऐसे प्रोविजंस आज भी हैं. आपको पता है उसके बारे में? मैम ओपन स्कूलिंग. Yeah, open schooling. Good. Okay, we have open schools. We call it as NIOS. That is National Institute of Open Schooling. ठीक है. तो ये that is a government organization which runs school. वहाँ पे एज की कोई बाधा नहीं है. आप कभी भी कोई कोर्स पढ़ सकते हो, वहाँ पे स्कूलिंग कर सकते हो आप, ठीक है. And you also have open universities where you can learn any of the graduation or postgraduate programs after a basic like basic education in the school. Okay, वो आप कर सकते हो. जैसे M.Com कर सकते हो इग्नू से after doing your 12th और 10th standard, ठीक है. ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस आज भी हैं. तो उन्होंने ऐसे बोला कि जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं उनका एलिमेंट्री एजुकेशन है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू भी देना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो प्री इंडिपेंडेंस एरा से लेके एलिमेंट्री एजुकेशन का जो क्या बोलते हैं एम्फेसिस था बहुत ज्यादा था कि एलिमेंट्री एजुकेशन तो एटलीस्ट हर बंदे ने किया होना चाहिए, ठीक है. तो फिर वो ऐसा बोलते, उन्होंने ऐसा बोला कि नॉन फॉर्मल वे में तो देना ही है एलिमेंट्री एजुकेशन, लेकिन नॉन फॉर्मल वे में भी देना है जिन्होंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है. तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए क्या करना चाहिए? We should have talented and dedicated young men and women from the local community
will be chosen to serve as instructors and particular attention paid to their training. ठीक है, तो मैं जो आप लोगों को सुबह इवनिंग क्लासेस के बारे में बता रही थी, नाइट क्लासेस के बारे में बता रही थी, वो भी एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन है. ठीक है, तो वहाँ पे जो बेसिक स्किल्स है, अरिथमेटिक स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, वो सब उनको सिखाया जाता है जो उनको नॉर्मली लाइफ में यूज होगा. तो उसमें क्या है कि आप हर नॉन फॉर्मल सेंटर के एक टीचर को अपॉइंट नहीं कर सकते थे, इसलिए सराउंडिंग में जो एजुकेटेड यंग वुमेन या मेन थे, उन लोगों को ही बोला जाता था कि यू शुड टीच इन दिस नॉन फॉर्मल क्लासेस, and they were appointed by the government for teaching in these evening classes or in the open schools. Okay, then open schools तो अभी बहुत ज़्यादा organized हो गया है, we have even recruitment for them. Okay, then steps will be taken to facilitate lateral entry into formal system of children passing out of the non-formal system. Okay, suppose एक बच्चे ने अपना elementary school नहीं पढ़ा, ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ा, अब वो हो गया 14 साल और उसको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे स्कूलिंग करना है, आई वांट टू गो टू एन सेकेंडरी स्कूल. ठीक है, अब जब तक वो अपना एलिमेंट्री स्कूल खत्म नहीं करेगा तब तक वो सेकेंडरी में तो एडमिशन नहीं ले पाएगा. इसीलिए उसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू जितना भी बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन का नॉलेज है वो दिया जाता है, एंड देन आफ्टर टेकिंग अ टेस्ट ही इज एडमिटेड इनटू अ सेकेंडरी स्कूल. सो व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल एंट्री? लेटरल एंट्री मतलब कि साइड से एंट्री, यानी कि किसी बच्चे ने अगर फॉर्मली अपने 6 to 14 इयर्स एज में एलिमेंट्री एजुकेशन ना किया हो, लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन के तहत उसने बेसिक जो एलिमेंट्री एजुकेशन में पढ़ाई होनी चाहिए वो पढ़ लिया हो, तो उसको सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए. सो देयर शुड बी अ फैसिलिटी ऑफ lateral entry into the formal system of education after the child passes out of elementary school in the non-formal system. Okay, then learning material of high quality will be developed and provided free of charge. Okay, for the non-formal elementary education the learning material will be free. Okay, then provide क्यों? क्योंकि non-formal education में कैसे बच्चे आएंगे? जो लोग अपने घर में पैसे कमाने के लिए बाहर जाते हैं और इसलिए वो स्कूल में नहीं आ पाते. ठीक है, ऐसे ही बच्चे होंगे यूजुअली, इसलिए वो लोग नहीं पढ़ पाए, तो उन लोगों को जो लर्निंग मटेरियल्स है वो भी फ्री दिया जाता है. देन प्रोवाइड अ करिकुलम फ्रेमवर्क और ऑफ एनएफई. ओके, फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जो करिकुलम फ्रेमवर्क है वो भी बनाने के लिए बोला था. ठीक है, और बनाया भी था हमने. ठीक है, देन non-formal programs will provide a participatory learning environment and activities such as games and sports, cultural programs and excursions and field visits will also be organized for the non-formal education gaining students. Okay, provisions of funds should be there. जो NFP centers थे या adult education centers थे, उन लोगों को funds भी देते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के. Okay, then fine. So this is about the primary, and then next is about the secondary education. Okay, let us see what was the provisions that were given in for the secondary education. Secondary education begins to expose the students to differential roles. Okay, if you know, primary education में बच्चा साइंस को साइंस के तौर पे नहीं पढ़ता है, सोशल साइंस को सोशल साइंस के तौर पे नहीं पढ़ता है. Science and social science are combined and they call it as environmental science. Okay, तो जब वो सेकेंडरी में आता है तो साइंस सेपरेट हो जाता है, सोशल साइंस सेपरेट होता है. सोशल साइंस के अंदर भी दूसरे कंटेंट्स होते हैं, सिविक्स होता है, हिस्ट्री होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ज्योग्राफी होती है. साइंस में भी फिजिक्स के चैप्टर्स होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं, बायोलॉजी के होते हैं. ठीक है, सो what happens is child is now exposed to different roles of different subjects. Okay, so this is appropriate stage to provide children with a sense of history, national perspective, and give them opportunities to understand the constitutional duties and rights of a citizen. Okay, till now we were just making the students gain basic skills so that they can earn their living. Okay, and they can do some basic arithmetic, they can have some reading ability, they can have some writing ability. This was the only aim for elementary. But for secondary classes, since now we are going to go in depth of
the subjects that they are learning, the policy said that we should actually expose them to the history of our country. We should actually expose them to the constitutional duties and rights which we have from the Constitution of India. Okay, so this is what was the aim. Now, for that, they also said that we should have certain, तो वो सब तो बेसिक चीजें हैं जो हमें पढ़ानी है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पर भी उन्होंने बोला है, सेकेंडरी एजुकेशन का क्वालिटी should also be given. The third thing is setting residential schools and Navodaya Vidyalaya should be established. Have you all heard about Navodaya Vidyalayas? Yes, ma'am. Yes, What is specific about Navodaya Vidyalayas? किस कोई है स्टूडेंट जो नवोदय विद्यालय से पढ़ के आया है? सुना है आपने नवोदय विद्यालय के बारे में? यस मैम, वहाँ पर Yes, ma'am. Yes, प्रोवाइड ma'am. की जाती है। रेजिडेंशियल स्कूल में ये रेसिडेंशियल स्कूल होता है, और क्या होता है? ऑल ओवर कंट्री से बच्चे सेलेक्ट होते नवोदय हैं, विद्यालय कहीं भी स्पेशली पढ़ सकते हैं। आर्मी ऐसा नहीं है बैकवर्ड फ्री एजुकेशन टू बैकवर्ड क्लासेस। पहले आप बोलो। स्पेशली आर्मी के बच्चों के लिए बनाया गया है ये। नो मैम, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। आर्मी के बच्चों के लिए बनाया गया। कौन बोल रहा है ऐसा? मरियम बोल रही है, पूजा बोल रही है? नहीं 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 मैम, आर्मी के लिए तो सैनिक स्कूल होती है। वही आई तो, थिंक मैम मैं बोल रही हूँ। आर्मी के लिए केंद्रीय विद्यालय होते हैं, आर्मी स्कूल्स होते हैं, मिलिट्री yes, स्कूल्स होते ma'am. हैं। ठीक है, सॉरी मैम। एक जो पॉइंट आप लोगों ने बताया वो सही है कि इट इज अ रेसिडेंशियल स्कूल। ठीक है, वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए प्रोविजन होता है कि वो लोग वहीं रह के पढ़े और उनको वहीं रह के पढ़ना होता है। ठीक है, नवोदय विद्यालय वाज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज में भी बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए नवोदय विद्यालय एस्टैब्लिश हुए थे ताकि उनके घर में अगर इतनी मतलब क्या बोलते हैं इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी ना हो कि वो लोग आगे एजुकेशन ले सके, तो वो लोग नवोदय विद्यालय में रह के वहीं के हॉस्टल वगैरह में रह के दे कैन स्टडी एंड दे यूज्ड टू गेट fellowship also for learning. Okay, so this was for the children from rural areas, especially the scheduled caste students and the scheduled tribe students. Okay, now this was done so that we give equal opportunities to these students who are left behind. ठीक है, आपको पता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो जो एरा था 1986, ठीक है, वो वाला एरा ऐसा था जहाँ पे ये जो लोग थे SCs, STs, OBCs, उन लोगों को लॉकडाउन अपॉन तो इतना नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उन लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी। अब वो लोग अगर एजुकेटेड भी नहीं होंगे तो फिर उनकी अपॉर्चुनिटीज को और भी कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ऐसा होता था। तो दिस वाज इट। नाउ या so about this, fine. Then next was about starting new schools. Okay, they said that new secondary schools should be started, and for each new school there should be adequate playground facilities where needed will have to be provided to by making available nearby vacant land. Okay, हर स्कूल के लिए प्लेग्राउंड जरूरी था, तो अगर प्लेग्राउंड नहीं है किसी सेकेंडरी स्कूल में तो फिर नियर बाय प्लेस में कोई अच्छा सा एरिया देखकर वहां पे प्लेग्राउंड बनाना चाहिए। ठीक है, then there should be classrooms, laboratories and all other facilities, and secondary and higher secondary school education is mainly looked after by the state governments and local bodies. ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, then lab equipment should be there, and for lab equipments the students can be asked for some lab fee also. Okay, that also they said. Then the teacher competency should be improved by attracting better qualified people. Okay, तो secondary schools में qualified people होने चाहिए थे। Okay, ऐसा उन्होंने बोला था। Then overall improvement in the curriculum and textual material improve करने के लिए हर पॉलिसी में बोला गया है। ठीक है, क्योंकि हमें क्वालिटी ऑफ टीचिंग इम्प्रूव करना है, तो बेसिक जो टीचिंग होती है वो तो टेक्स्ट बुक के बेसिस पे ही होती है।
So that has to be done. So as an important program in the process of consolidation should be helped to have a 3 streams. उन्होंने बोला कि higher secondary में there should be 3 streams. It should be humanities, science and commerce. Okay. So right now we have those 3 streams in our schools, isn't it? Then efforts will be made to provide computer literacy. Okay. So 1986 was not very like बहुत तभी कंप्यूटर के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन स्टिल the policy said that we should introduce the computer literacy program for the students in secondary classes. Okay, a proper understanding of work ethos and value of human. Now see, India is a country where the students might now they are going for higher education, but that time it was such a condition that the student hardly used to go for secondary classes. Secondary primary खत्म हो गया, बहुत पढ़ लिया, या फिर प्राइमरी से सेकेंडरी पढ़ लिया, 10th स्टैंडर्ड हो गया तो बहुत बड़ी बात है ऐसा. उसके बाद वो लोग काम करने के लिए चले जाते थे. So the policy said that we should help the students understand the work ethos. Work ethos मतलब वर्क प्लेस पे कैसे बिहेव करना है, सबके साथ कैसे ह्यूमन होकर रहना है, मतलब एक दूसरे को कैसे समझना है वर्क प्लेस पे, ऐसे ये सब चीजें हमें उनके स्कूल में पढ़ाना चाहिए. कौन सी स्कूल में? सेकेंडरी स्कूल. ठीक है. वोकेशनलाइजेशन शुड बी स्पेशलाइज्ड, शुड बी थ्रू स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस. ओके. अब देखो, पहले हम लोगों ने जो 68 वाला पॉलिसीज था उसमें ऐसा बोला था कि वोकेशनलाइजेशन शुड बी देयर, लेकिन ऐसा नहीं बोला था कि उसके लिए क्या प्रोविजंस करने चाहिए थे. बट NPE 1986 says that vocationalization should be through specialized institutions. तो इसके तहत हम लोगों ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किए, ITIs. Okay, we started the diploma centers wherein after the secondary classes they can have some vocational training. Okay. Then there are other institutes also. I don't remember. We have this RVTIs. Okay, regional vocational training institutions. Okay, so that is state level institutions. ये जो ITIs है वो तो governed by the central government. Of course वो जो funds वगैरह आती है वो state government से आती है. Central government gives to the state and state gives to the center. But RVTIs भी होती हैं. RVTIs are the regional vocational training institutions. Okay, वहाँ पे भी vocational training दिया जाता है. Okay, then we also have some institutions called as this पॉलिटेक्निक शिक्षण केंद्र ऐसा कुछ होता है. I think it was जन शिक्षण केंद्र, JSK है या it is JSK. Okay, so under the JSK also we have certain provisions where computer courses are taught, where tailoring is taught. ठीक है. तो फीस जो होती है वो सब्सिडाइज्ड होती है क्योंकि वो गवर्नमेंट कोर्सेस है. ठीक है. और आप में से कोई बड़ोडाइट है, बड़ोड़ा में रहते हो आप, और नेहरू भवन में भी ऐसे कोई कोर्सेस होते हैं. दैट इज ऑल्सो सम वोकेशनल कोर्स ओनली. तो 10th स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद आप वो वोकेशनल कोर्सेस शुरू कर सकते हो, पढ़ना शुरू कर सकते हो. और हमारे यूनिवर्सिटी में भी, MS यूनिवर्सिटी में भी हमारे पास अडल्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, अडल्ट ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे वी हैव सर्टिफिकेट कोर्सेस जो 10th के बाद 12th के बाद कर सकते हैं. अभी शायद 10th के बाद वाले कोर्सेस नहीं है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड के बाद आप वो कोर्सेस कर सकते हो. कुछ ऐसे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के होते हैं, मतलब सेक्रेटरी बनने के लिए. फिर दूसरे क्या कोर्सेस है वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता. कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेस है. ठीक है. सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं जिसको आप करके फिर आगे कुछ मतलब जॉब ले सकते हैं. ठीक है. सो वोकेशनलाइजेशन उन्होंने बोला कि शुड बी थ्रू स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, इसीलिए हम लोगों ने ऐसे स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए. ओके. The next major recommendation was about the vocationalization in secondary and higher secondary education. I felt that because this is related to the secondary education, we should know about it as teachers. Okay, so I have brought this into your classroom. So what they did say is that health planning and health service management, ठीक है, health planning and health service related जो management है उसके vocational courses होने चाहिए. ठीक है, ऐसा बोलते हैं. अगर आपको पता होगा तो ये जो लैब असिस्टेंट्स होते हैं जो लैब में टेस्टिंग करते हैं, उनके भी कोर्सेज होते हैं 12th स्टैंडर्ड के बाद.
So that is also a vocational course. Okay. So they said that there should be health related and health service management related courses after separate institutions में पढ़ाने चाहिए. Then there should be other vocational courses related to agriculture, then marketing, social service, etc. Okay, and emphasis in the vocational education will also be on development of attitudes, knowledge, and skills of entrepreneurship. ठीक है, वो मतलब वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनको इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए कि उनका जो एटीट्यूड है वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेने का हो. ठीक है, मतलब वो लोग जाके कहीं पे जॉब कर सकते हैं वो तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी एंटरप्रेन्योर्स बन सके. एंटरप्रेन्योर्स यानी कि खुद का एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट करना. तो ऐसा वो लोग कर सके वैसी एटीट्यूड्स भी उनमें डेवलप करनी चाहिए वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन. ओके. Then the establishment of vocational courses or institutions will be responsibility of the government. Okay, this is what they say. Non-formal, flexible, and need-based vocational programs will be made available to neo-literates. Okay, who are neo-literates? Neo-literates मतलब neo मतलब क्या होता है? Okay, I'll tell you. Neo-literates here means youth who have completed primary education. Okay, सिर्फ primary education complete किया और school छोड़ दिया, अब उनको secondary में पढ़ना नहीं है. तो ये जो neo-literates हैं उन लोगों को, वो लोग ने ड्रॉप आउट कर लिया स्कूल से. ठीक है, तो उन लोगों को भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन मिलना चाहिए. ठीक है, इसीलिए पहले के जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स थे वहां पे 7th के बाद या 8th स्टैंडर्ड का पास करने के बाद भी वो लोग कुछ कोर्सेज पढ़ सकते थे. बट ऑफ लेट क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए हैं और अभी क्या है कि कोई भी प्राइमरी के बाद अपनी स्कूलिंग छोड़ता नहीं है, मिनिमम 10th तक तो पढ़ता ही है या 12th तक तो पढ़ता ही है. तो अभी के जो वोकेशनल कोर्सेज है वो 10th और 12th के बेसिस पे होगा क्योंकि इट इज द सोसाइटी इज चेंजिंग ओवर द इयर्स. ओके, सो द स्टूडेंट्स नाउ डोंट ड्रॉप आउट आफ्टर प्राइमरी, they go to secondary, they go till 12th and then maybe they drop out because their family conditions are not good. Okay. Neo-literates को भी यानी कि प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करके ड्रॉप आउट होने वालों को भी वोकेशनल एजुकेशन दिया जाना चाहिए. टर्शियरी लेवल कोर्सेज विल बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर young students who graduate from the higher secondary courses of the academic stream and may also require vocational courses. Okay. Then next is the introduction of systematic, well-planned and rigorous implementation of programs of vocational एजुकेशन. ओके, तो उन्होंने बोला कि जो वोकेशनल एजुकेशन है वो बहुत सिस्टमैटिकली इंट्रोड्यूस होना चाहिए. देन वोकेशनल एजुकेशन विल बी डिस्टिंक्ट स्ट्रीम. इट शुड बी अ डिस्टिंक्ट सेपरेट स्ट्रीम. इट शुड नॉट बी इंटीग्रेटेड विद द स्कूल. ओके, जबकि एनपीई 68 ने क्या बोला था, इट शुड बी इंटीग्रेटेड विद द सेकेंडरी एजुकेशन. ठीक है, उससे पहले जो कोठारी कमीशन था उन्होंने भी बोला इट शुड बी इंटीग्रेटेड विद द स्कूल, बट यहाँ पे उन्होंने बोला इट शुड बी अ सेपरेट स्ट्रीम. ओके. So this they said that at primary classes also you should be able, the student should be taught certain vocational skills और इसीलिए उन लोगों ने SUPW यूज करने की सलाह दी. Okay, SUPW is socially useful productive work. Okay, so the students should be taught to have SUPW, that is हर बच्चे को कुछ ना कुछ SUPW में सिखाना चाहिए. तो जैसे कभी किसी को मतलब टेलरिंग का कुछ सिखा दिया, कभी कुछ कुकिंग का सिखा दिया. ठीक है, तो ऐसे जो स्किल्स है वो उनको सिखाने चाहिए जो इजीली दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ाए भी जा सकते हैं और उनसे वो लोग कुछ स्किल्स भी सीख सकते हैं. ठीक है, या तो फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाना सिखाना. ठीक है, जैसे पॉटरी वगैरह, पेंटिंग वगैरह. ठीक है. So at middle school stage, they said that SUPW or WE is work experience. ठीक है, SUPW या WE should be compulsorily taught to the students. And SUPW or WE programs for secondary stage should be viewed as a linear extension for the middle stage. Okay, तो middle stage में अगर प्राइमरी के बाद बच्चा क्लास स्कूल छोड़ देता है, ठीक है, तो SUPW अगर उसने किया होगा, वर्क एक्सपीरियंस के अगर कुछ उसने एक्टिविटीज की होंगी, तो उसको पता होगा कि मेरे को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, मुझे पॉटरी में इंटरेस्ट है, मुझे स्टिचिंग में इंटरेस्ट है, उसको पता होगा. तो फिर वो प्राइमरी स्कूल के बाद जब वो सेकेंडरी स्कूल में जाएगा,
सॉरी सेकेंडरी स्कूल नहीं जाएगा तो वो जो वोकेशनल कोर्सेज वो सिलेक्ट करेगा तो वो ऐसा सिलेक्ट करेगा जो उसके SUPW स्किल्स के साथ मैच होते हो या जो जिसमें उसको इंटरेस्ट हो. ओके, सो लीनियर एक्सटेंशन का मतलब ये है कि लीनियर मतलब लाइन, इन लाइन. ओके, एक्सटेंशन मतलब जो स्किल्स उसने प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं SUPW के अंदर उसी को वो वोकेशनल कोर्स के फॉर्म में आगे प्राइमरी स्कूल के बाद वोकेशनल सेंटर्स पे पढ़ सकता है. तो इसीलिए SUPW इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है. ठीक है. Then next is the vocational courses at higher secondary stage should be regarded as a preparation for the college. Okay, कॉलेज में जो जरूरत है वो सारी चीजें उन लोगों को हायर सेकेंडरी वोकेशनल कोर्सेज में पढ़ाना चाहिए. मतलब वर्क एक्सपीरियंस शुड बी देयर इन हायर सेकेंडरी आल्सो, जहाँ पे उनको लैब एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, क्योंकि कॉलेज में तो उनको लैब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंटेशंस करने पड़ेंगे. ठीक है, so all those things should be taught. Then all polytechnic institutions, ITIs and other vocational and technical training institutions, selected higher secondary schools, colleges and special institutes will engage themselves in imparting vocational education. ये मैं आपको बोल चुकी हूँ. ठीक है, कि ये सब institutions उन लोगों को वो देंगे. ठीक है. Selected engineering colleges, polytechnics and industrial training institutions and other vocational and technical training schools or institutions will engage themselves in conducting part-time courses. ठीक है. यहाँ पर भी हम लोग का जो MSU है वहाँ पे जो डिप्लोमा सेक्शन है, जहाँ पॉलिटेक्निक है, वहाँ पे कुछ पार्ट टाइम कोर्सेज होते हैं. तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लोग को कमाना जरूरी है उनकी फैमिली के लिए, इकोनॉमिक सस्टेनेंस ऑफ द फैमिली के लिए कमाना जरूरी है, लेकिन साथ में वो लोग आगे की पढ़ाई भी करना चाहते हैं. तो फिर वो लोग के लिए इवनिंग क्लासेस होते हैं कॉलेजेस में. ठीक है. So that should also be provided. That is what NPE 86 said. Then special vocational training institutions for women should be there. Okay. So women should be there, for tribal students should be there, and for weaker sections of the society should be there. मतलब वो special training centers होने चाहिए उनके लिए, vocational training centers. ठीक है. Then entrepreneur or self employment skills should be developed in, ये तो मैंने आपको बता दिया है. Yeah, so the last thing is training of the personnel for the instructional resource development will be organized by NCERT. NCERT, you know, National Council for Educational Research and Training. Okay. ऐसे ही state level पर State Council for Educational Research and Training होता है. ठीक है, जिसको गुजरात में GCRT बोलते हैं, जिसको बिहार होगा तो BCRT बोलेंगे, महाराष्ट्र है तो MCERT बोलेंगे क्योंकि महाराष्ट्र का M, गुजरात का G. ठीक है. सो ये जो ITIs में और पॉलिटेक्निक्स में वगैरह जो वोकेशनल कोर्सेज में पढ़ाते थे, वो जो टीचर्स थे उनका जो ट्रेनिंग है that should be done by NCERTs and SCERTs and TTIs and RCEs, CDCs, etc. Okay. RCEs are the regional councils of education. Then you have regional centers of education, sorry. Then you have CDCs. Okay, so these centers were given the duties of training the teachers. Okay, so that is all. Now I want to tell you something more. एक चीज मुझे और चीज बतानी है आपको कि जो NP 1986 था वो एक बार बना तो दिया, ठीक है, फिर उसके बाद 1992 में ऐसा माना गया कि 86 का जो पॉलिसी है वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ है वो देखा गया, और फिर ये देखा गया वो देखो ये सब तो पॉलिसी में लिखा है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कैसे होना चाहिए उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाया, ठीक है, और उस एक्शन प्लान को बोला गया POA. दैट इज, तो एक्शन प्लान जो है वो बनाया गया 1992 और उसको बोला गया POA. दैट इज
प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन POA 1992। तो POA 1992 क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज द प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी ऑफ 1986। मतलब 1986 में सारे पॉलिसीज तो बोल दिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया कैसे किया जाए, उसके लिए POA 1992 बनाया गया है, ठीक है। मैंने जो आपके लिए नोट्स बनाए हैं उसमें POA के भी कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इट इज नथिंग बट इट इज पार्ट ऑफ 1986, ओके। सो दिस आल्सो यू नीड टू, ओके। सो we'll end the class here. Now we will be meeting on Monday, right? Monday 12:45. Ma'am, I Okay. want to ask one thing. जो Yeah, Mariam, please ask. कंपल्सरी वाटर, फ्रेश वाटर पानी का जो था पॉलिसी, वो कब हुआ था मैम? फ्रेश वाटर होना Compulsory चाहिए स्कूल्स में, वाटर फैसिलिटी, ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर फैसिलिटी। देखो, ये जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी वगैरह है ना, वो सब भी ये ब्लैक बोर्ड वाला कौन सा था, UBB वो वाला जो प्रोग्राम था ना, हाँ, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, उसके अंडर में ही आया है कि उन लोगों को, तुम लोग अगर गूगल करोगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो तुम्हें उसका ओरिजिन, क्यों वो स्टार्ट हुआ, वो सब आएगा। तो उसमें ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी था, ठीक है। तो नाम भले उसका सिर्फ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, क्योंकि उसका बेसिक एम ये था कि हम क्लासरूम को ब्लैक बोर्ड दे और उनको बेंचेस दे, लेकिन बाद में उसका एक्सटेंशन होते होते ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सैनिटरी फैसिलिटीज, वो सब हो गया, ठीक है। मतलब ये प्लेग्राउंड प्रोविजन, construction of the new construction of different rooms for the school, यानी at least 3 rooms for the school, ये सब कुछ हो गया under that program only, okay. So it was under operation blackboard. और मैम जो बैग का भी था कि बैग का वजन 2.5 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए बच्चों का, वो भी क्या उसी में था या फिर ये तो नहीं, वो उसमें नहीं था। वो अभी रिसेंटली नॉलेज कमीशन आया था 2010, लर्निंग विदाउट बर्डन का, तुम अगर गूगल करोगे ना, लर्निंग विदाउट बर्डन का एक डॉक्यूमेंट है, तो उसमें था कि बच्चे बैग का जो बर्डन है वो 2.5 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए एलिमेंट्री स्कूल से। वो तब था, पहले नहीं था, पहले वाले में नहीं था। ओके मैम, बस यही पूछना था, थैंक यू। ठीक है, ओके देन, बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।